All right, good evening, everyone. So I can see Sakshi. Sakshi, how are you doing? I'm doing great, sir. Wonderful. And were you able to do your homework? No, sir. No? Right. What happened? सर आज कॉलेज स्टार्ट हो रहा है इसलिए कर नहीं पाएंगे. Okay. All right. Anyway, we'll carry on. So not a problem. I'll just quickly let there's someone. Good evening. I see someone. Good evening, sir. Good evening. Who's that? Sir, this is Rajeshwari. Oh, Rajeshwari. Good evening. I couldn't recognize you because you're using someone Yeah, else's ID. because I, Yeah. but no, Oh, by mistake I okay, okay. log in from my husband. Yeah, that's why I thought so. I said that's someone else today. Anyway, not a problem. Okay, perfect. So, you're keeping well, Rajeshwari, your health, everything is in order? Yes, sir, it's better Okay, it's because better it now. was actually viral plus migraine. I have a migraine issue, so it was mixed. Oh, I understand these days, even over here in our city, we have this issue, I think, across the country because of heavy rainfall and everything happening across. There's a lot of viral as a problem. People are suffering from this issue, right? Okay, I can Okay. see Pranjal. Pranjal, good evening. Good evening, Arbaz. How are you doing? No, sir. Good evening, sir. All well? Yes, Yes, sir. sir. Okay, great. I can see. Sorry? How are you, sir? I am perfectly fine, and I'm always flying when I see students in my English class. So you can imagine the energy that I have when I see you people there with me. And tomorrow is the Saturday, and then we have Sunday. So 2 days we'll be not meeting because that's a weekend. And I'm sure you're going to work very hard on the weekend. Are you? Yes, sir. Yes. Yes, sir, also. Okay, great. So we'll quickly start now. What is the homework, Arbaz, Rajeshwari? If you can help me quickly with that, what was the homework that I had given you to do? So we have to complete all the tenses. All right, all the tenses. Oh, that's very scary. But nevertheless, today is the final day for doing all the tenses. I have 3 more tenses for you to cover up. And then on the weekend, on Saturday and Sunday, you take your sweet time, take your complete time to do these tenses in a detailed way. And when we catch up on Monday, we'll start moving ahead with the remaining topics of our course. So today we are going to move ahead with the 3 tenses. They are very important, but I don't know if you already know them. I'll try to help you with these tenses today. There's something called past continuous tense. Past continuous tense. You would tell me if it's visible to you. Is the screen visible to you, Arvaz and everyone? Past continuous tense? Right? Yes, sir. Okay. Yeah. So, what all tenses have we seen this far? Which all tenses did we see this far? We have seen simple present. We have seen present perfect. We have seen present continuous. As far as the past tenses are concerned, we have seen simple past. We have seen simple future, the one with will. Is that so? Yes, sir. Okay, so we have seen 5 tenses by now. You're all okay with Yes, that, sir. right? So everyone is okay with simple present and present continuous. And when we talk about present perfect, simple past, right? And we also saw the simple future, which is will. ये 5 हमने tenses देख लिए and I'm sure you are comfortable with that. Is that so, everyone? Yes, Yes, sir. Perfect. आज हम 3 और टेंसेस देखेंगे और उसके बाद हम लार्जली हमारे जो लेवल पे टेंसेस आते हैं उन सबसे थ्रू हो जाएंगे. एक आज देखेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट में कोई चीज कंटिन्यू चलती है उसको देखेंगे. उसके बाद मैं आपको आज दिखाऊंगा एक और टेंस जिसका नाम है, चलिए जब वो देखेंगे तब हम देख लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम. सो राइट नाउ विल जस्ट वर्क ऑन दिस वन. सो दिस इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस. ओके, आप क्विकली बता सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? एनीवन जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट डज दैट मीन, पास्ट कंटिन्यूअस. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? या साक्षी yes, sir. बताइए. जो काम जो क्रिया है वो मतलब हो चुकी हुई है, इसमें बोझ लगता है. अच्छा, उदाहरण दीजिए, बताइए, कोई उदाहरण देके बताइए. आई वॉज ईट, मैंने खा लिया था. आई वॉज ईट, ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाला वाक्य है.
अश्विनी। I was हाँ बोलिए वापस से। I was eating. वेरी गुड। अब नाम देखिए, इसमें साक्षी कंटिन्यूस है ना, तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा, isn't it? Yes, sir. हाँ तो बिल्कुल आपको Yeah. सही, बिल्कुल थोड़ा सा आपको इसको अलर्ट होके देखना है। Yes, So sir. whenever we talk about past continuous, तो आपने सही बताया कि इसमें हमें was या word लगाना है और साथ में हमें ing लगाना है। It's as simple as that. So I can see Rubina. Good evening, Rubina. How are you doing? Sir, fine, sir. Right. Thank you for asking, sir. How are you, sir? I'm doing perfectly great. Thank you so much. So we are right now working on the tense that's called past continuous tense, right? Past में कोई चीज चल रही थी. That is what we're going to look at in today's session. So बहुत सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। I was writing a story. क्या मतलब है इसका रुबिना? I was writing a story. मैं एक लेटर लिख आई मीन टू से एक टाइम पे लिख रहे थे। ठीक है, चलिए आपको हिंदी में हाँ। पूछने में आई अंडरस्टैंड, आप समझ में तो आता है बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस, सो हिंदी में हम बोलेंगे हाँ। मैं एक कहानी लिख रहा था। इज दैट ओके राजेश्वरी? मैं एक कहानी लिख रहा था। इन बेंगली আমি একটা গল্প লিখছিলাম। अच्छा but that will go over our head. We won't understand your Bengali, so I would simply say to you, Rubina, আমি কি করব এখন? আমি কি করব এখন? So what am I going to do now? So that আমি কি করে আমি কি করব এখন? No? আমি কি করব এখন? Okay. Yes, what am I doing now? Yeah, what am I going to do now if I start speaking to you in Bengali? So we'll stick to Hindi and English for the moment. Yeah. So मैं लिख रहा था। अब इसमें क्या होता है कि आप जब वो काम कर रहे थे पास्ट में, हमें पता नहीं राजेश्वरी कि वो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उस समय तो वो चल रहा था। Does that make sense? Right? मैं गाना गा रहा था, हम टीवी देख रहे थे, वो सो रहा था, वो पढ़ रहा था, राइट? समथिंग वाज हैपनिंग इन द पास्ट एंड इट वाज कैरिंग ऑन, वो चल रहा था, राइट? अरबाज क्लियर है आपको इसका सेंस? Yes, sir. ओके, सो शी वाज वाचिंग टीवी या फिर आई वाज राइटिंग अ बुक। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। वाज और वर उठा लीजिए और आईएनजी लगा दीजिए। वाज वर के साथ आईएनजी लगाएंगे तो आपका ये टेंस बन जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि आई, ही और शी के साथ वाज लगाना है और बाकी लोगों के साथ यू, वी और दे के साथ वर लगाना है। आई वाज, यू वर, ही वाज, शी वाज, इट वाज, वी वर एंड दे वर। ये क्लियर है आप सभी को? समझ में आता है आपको? है ना? ओके, और इसके साथ आईएनजी। तो ट्राई करते हैं। राजेश्वरी आप बताइए, मैं गा रही थी। Good evening, sir. I was singing. Okay, great, Rajeshwari. I'll just quickly greet Krishnamanu. Good evening, Krishnamanu. How are you doing? I'm fine, sir. How are you, sir? I am perfectly fine. Thank you so much. You got late today as well? Yes, sir. What happened? The technical issue? No, sir. No? All right. Okay, so Krishnamanu, we are looking today at past continuous tense. Past में जाना है और उसको carry on करना है, continue करना है। तो जो अभी राजेश्वरी ने बताया हमें, I was singing. I was singing. आप सभी को याद है वो लिस्ट जिसमें आईएनजी फॉर्म से सिंगिंग, डांसिंग, रनिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये आईएनजी फॉर्म्स है, राइट? क्रिया है ये सारी, तो उसमें आईएनजी फॉर्म। सो तो हमने बड़ा इजीली देखा कि हमको वॉज वर्ड लगा के और इसमें आईएनजी लगाना है। चलिए मैं उदाहरण आपको दिखा देता हूं वापस से। मैं कहानी लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी। वह टीवी देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन। वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। चलिए अब इसका नेगेटिव कर लेते हैं। नेगेटिव करने का बड़ा आसान सा तरीका है। क्या करना है हमको? और बात हमें वॉज वर्ड के बाद नॉट लगाना है और आईएनजी लगाना है। चलिए तो मैं इसको छुपा देता हूं। चलिए, मैं कहानी नहीं लिख रहा था। हु कैन ट्राई? ऐसा करूं? Let's ask Arvaz once and then I'll come to you. Arvaz. I was not writing a story. Exactly, I was not writing a story. बिल्कुल ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, I wasn't. I wasn't. आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, was not को हम wasn't भी बोल सकते हैं। I wasn't writing a story. Perfect. चलिए, वह टीवी नहीं देख रहा था। Anyone? वह टीवी नहीं देख रहा था। हाथ रेस कीजिए। I can see प्रांजल। प्रांजल बताइए।
He was not watching TV. वेरी गुड, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। एक और क्या तरीका है प्रांजल वॉज नॉट को बोलने का? He wasn't watching TV. वेरी गुड, ही वॉजंट वॉचिंग टीवी। परफेक्ट, ही वॉजंट वॉचिंग टीवी या ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। परफेक्ट। लास्ट, वे खेल नहीं रहे थे। हु कैन से दैट? राजेश्वरी बताइए, वे खेल नहीं रहे थे। They were not playing. और बोलिए वापस से एक बार। They were not playing. या और they weren't not playing. Mix करके कैसे बोलते हैं? या सो पहले इस पे ध्यान Were देंगे। not. या दे वर, इसको थोड़ा सा और इसका उच्चारण सही कीजिए राजेश्वरी। दे They वर, were या they were not playing. परफेक्ट, दे वर नॉट प्लेइंग या फिर दे वर्ंट। दे वर्ंट, They डब्ल्यू ई weren't. आर, They weren't. या डब्ल्यू ई आर ई एन टी। दे वर्ंट, they weren't playing, right? W-E-R-E-N apostrophe, they weren't playing, right? They weren't playing, they weren't नहीं बोलेंगे, they weren't playing, They right? weren't. They weren't They playing, weren't playing. perfect, they weren't playing, उसमें not शामिल हो गया। okay, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रश्न पूछना है। okay, चलिए यहीं से देख लेते हैं। क्या मैं कहानी लिख रहा था? मुझे नहीं पता मैं कहानी लिख रहा हूं, मुझे लगा मैं तो कोई गाना लिख रहा हूं, पर उसने कहा कि आपने जो लिखा ना वो कहानी है। तो साक्षी आप कैसे बोलोगे? अच्छा, क्या मैं कहानी लिख रहा था? क्या मैं कहानी लिख रही थी? Was I writing a story? Absolutely, but इसको was Yes. है, बोलिए वापस से was। Was I writing a story? वेरी गुड, was I writing a story? Was I writing a story? Was I writing a story? बिल्कुल ठीक है, क्या मैं कहानी लिख रहा था। और ऊपर जो दिए गए दो और वाक्य थे, he was not watching TV and they were not playing। इसका प्रश्न बना सकते हैं, कोई भी हाथ रेस कीजिए, क्वेश्चन बनाना है इसका। रुबीना, raise your hand, don't give the answer, raise your hand। okay, रुबीना आप बताइए। Was he not watching TV? very good, was he not watching TV? Was he not watching television? Was no, I think हमने नेगेटिव बना दिया। नहीं, what am I saying? आपको पहले पॉजिटिव का ही बनाना है। I'm sorry, I just mixed it up. So पॉजिटिव में क्या वो टीवी देख रहा था? क्या वो टीवी देख रहा था? Watching TV? Yeah, was he watching TV? Very good. Was he watching TV? Was he watching TV? क्या वो टीवी देख रहा था? Very good. I'm sorry, I think I mixed it up. So was he watching TV? क्या वो कल उस समय टीवी देख रहा था? Was he watching TV? Perfect. Okay. और क्या वे खेल रहे थे? हम यहाँ वाला ले रहे हैं सेंटेंस, एक्चुअली पॉजिटिव वाला। They were playing. क्या वो खेल रहे थे? Anyone? हाथ रेस कीजिए। Whom should I ask? I'll ask साक्षी बताइए, क्या वो खेल रहे थे? Were they playing? ओके, आई एम श्योर आप ये बोलना चाहते हैं, isn't it? Yes, sir. तो आप इसकी ध्वनि आप ऐसी वाली क्यों निकाल रहे हैं? ये वेयर है, आपको बोलना है वर। बोलिए साक्षी, वर। Were they playing? वेरी गुड, वर नॉट वेयर, राइट? वर दे प्लेइंग? Yes. वर दे प्लेइंग क्या मतलब है इसका साक्षी? वर दे प्लेइंग? क्या वे खेल रहे थे? वेरी गुड, क्या वे खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग यस्टरडे? क्या वे खेल रहे थे? परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके लिए थोड़े बहुत मैं वाक्य लेके आया हूँ, थोड़ा सा आपको परेशान करते हैं, आपसे पूछते हैं कि इन सब का क्या मतलब हो सकता है। उससे पहले हम फटाफट से देख लेते हैं जो आप लोगों ने कहा, was he watching TV and were they playing, right? ओके, अब हम आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेके आए हैं हिंदी भाषा में, जिनका अनुवाद यू विल हैव टू डू इन इंग्लिश। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ और 10-10 ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते, बाकी आपका गृह कार्य है, रेस्ट से होमवर्क। चलिए, जब फोन बजा तब मैं किताब पढ़ रहा था। देखिए, एक बात को विशेष रूप से समझ लीजिए आप सभी लोग, व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस, वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं चलता। कैसे अरबाज? मैं टीवी देख रहा था, वो गाना गा रही थी, हम पढ़ाई कर रहे थे। आप कहोगे सर पर ये तो बनता है ना, इसका सेंस समझ में आ रहा है। ये हमेशा इस प्रकार से बोला जाता है। इसके साथ एक और एक्शन जुड़ता है, जब घंटी बजी तब मैं टीवी देख रहा था। समझ आ रहा है आप सभी को? जब हमारे घर मेहमान आए तब बारिश हो रही थी। इज दैट ओके? रुबीना, अरबाज, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरबाज वांट टू से समथिंग? क्लियर है? ठीक है, इज दैट ओके? या ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे?
Is that so? The question? Rubina? Rubina, you're saying something? Yes, sir. Yes. यही क्वेश्चन है कि ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है। आप लोगों को सिंपल पास्ट आता है? सिंपल पास्ट एवरीवन? Yes, sir. बस Yes. तो एक हिस्से में जो एक्शन हो गया है रुबीना वो है सिंपल पास्ट, और जो चल रहा है वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। एक मैं आपको करके बता देता हूं। जब फोन बजा तब मैं किताब पढ़ रहा था। बताइए कौन सा एक्शन खत्म हो गया और कौन सा चल रहा है? अनम्यूट करके बताइए। राजेश्वरी, कौन सा एक्शन खत्म हो गया और कौन सा एक्शन चल रहा है इन दो एक्शंस में से? जब सर मैं किताब पढ़ रहा था और फोन बजा, हाँ। मतलब फोन अभी बजा है। हाँ, फोन बजकर ये- बंद हो चुका है। फोन तो खत्म हो चुका एक्शन, और पढ़ाई करने का एक्शन चल रहा है। चल रहा है। ये तो क्लियर है सभी को कि कहां पे पास्ट सिंपल पास्ट लगाना है, कहां पास्ट कंटिन्यूअस। तो राजेश्वरी आप बताइए कि कौन से हिस्से में, दो हिस्से हैं, जब फोन बजा तब मैं किताब पढ़ रहा था। तो एक नंबर यहां देता हूं और दो नंबर यहां देता हूं। तो आप बताइए राजेश्वरी, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में कौन सा टेंस लगाएंगे, सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस? सिंपल पास्ट नंबर 1 में होगा और पास्ट कंटिन्यू सेकंड में होगा। वेरी गुड। सभी को क्लियर है? साक्षी, अरबाज, रुबिना, Yes. ठीक है? नहीं? हाँ क्लियर है सभी को? ओके चलिए अरबाज अब आप बताइए, जब फोन बजा, when the phone something something, I was something something। ट्राई कीजिए। When when the phone, when the phone क्या होता है बजने की, क्या है क्रिया? बताइए राजेश्वरी। Ring. रिंग। रिंग है टू रिंग, टू रिंग, टू रिंग। इसका पास्ट टेंस क्या होगा? सेकंड फॉर्म बताइए। नहीं, रंग तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग। तो क्या है सही? रैंग। बिल्कुल ठीक है राजेश्वरी, रैंग। When the phone rang, when the phone rang, मैं क्या कर रहा था? I was reading book. I was reading a book, I was reading a book। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? प्रांशुल, समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अब आप फटाफट से, जल्दी से आपको टाइम देता हूं, आप सभी लोग 10 तक के वाक्य बना लीजिए। दो हिस्से हैं हर वाक्य में। एक हिस्सा है जो ओवर हो चुका है, एक हिस्सा है जो अभी भी पास्ट में चल रहा था। तो जो हिस्सा हो चुका है वो हो जाएगा सिंपल पास्ट में, और जो हिस्सा पास्ट में चल रहा था वो हो जाएगा किस रूप से? पास्ट कंटिन्यूअस से। चलिए मिलके करते हैं, आंसर्स नहीं देंगे अभी आंसर्स नहीं देंगे, अभी मिलके करते हैं। जब मैं पहुंचा तब वह खाना बना रही थी। तो प्रांजल आप मुझे हेल्प कीजिए, इसको मैं कैसे समझूं? इसमें कौन सा पोर्शन है जब मैं पहुंचा, और दूसरा हिस्सा है तब वो खाना बना रही थी? इसमें कौन से हिस्से में प्रांजल आप लगाओगे सिंपल पास्ट, और कौन से हिस्से में आप पास्ट कंटिन्यूअस लगाओगे? तो सिंपल पास्ट जब मैं पहुंचा तब। वेरी गुड। जब मैं पहुंचा यानी मैं पहुंच गया, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। तब वह खाना बना रही थी, तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। वेरी गुड। आप ट्राई करोगे प्रांजल इसका आंसर? प्रांजल, you'd like to try this one? Just I did. ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से समय लीजिए। जिनका हो चुका है वो आगे बढ़ते जाइए। 10 जो वाक्य हम वो आज सीखेंगे आपके साथ में। When I entered, she was preparing food. Absolutely correct. When I entered, she was preparing food। यहां तक ठीक है, लेकिन पहुंचने की क्रिया जो होती है ना, वो कौन सी क्रिया होती है एग्जैक्ट? कौन सा वर्ब होता है यार रुबिना? Arrived. Absolutely, arrive, right प्रांजल? पहुंचना is to arrive। enter होता है प्रवेश करना, अंदर घुसना, right? बट आप कहीं पहुंचते हो तो you always use the verb to arrive। तो क्या हो जाएगा प्रांजल? when I arrived, she was preparing food. Very good। When I arrived, she was preparing food। I don't know यहाँ पे मैंने आपको अंग्रेजी में दिए हैं क्या इनके उत्तर? या सर रीच भी आएगा, रीच। रीच, रीच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हो सकता है, पहुंचना रीच भी हो सकता है। लेकिन हम जनरली अराइव्ड यूज करते हैं कहीं पे पहुंचना। When I reached,
लेकिन रीच के साथ आपको बताना पड़ेगा व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, उस तरीके से। अराइव बड़ा न्यूट्रल हर जगह चलता है, तो आप देख सकते हैं नीचे इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग, शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड। इसको आप उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, when the phone rang, I was reading a book, when I arrived, जैसे प्रांजल ने कहा, she was cooking dinner, she was preparing food, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कर दीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10, और बाकी ये सारे होमवर्क के लिए हैं, वीकेंड पे बैठ के आप बोर ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए 11 से 20 सेंटेंसेस दिए हैं। ओके नेक्स्ट, आई आस्क वन बाय वन, थोड़ा सा हम दिमाग साथ में लगाते हैं। सो प्रांजल से हमने पूछ लिया है, आगे हम पूछते हैं अरबाज से। अरबाज आप बताइए, वे दोपहर भर फुटबॉल खेल रहे थे। They are playing football a full afternoon. ओके, दे के बाद आपने क्या बोला अरबाज? दे When दे वर, they were दे वर साथ में बोलिए वर। वेरी they गुड, were दे वर प्लेइंग फुटबॉल, एग्जैक्टली दे वर प्लेइंग फुटबॉल। दोपहर भर, द होल आफ्टरनून, द होल आफ्टरनून, एग्जैक्टली राइट, द होल आफ्टरनून दे वर प्लेइंग फुटबॉल। देख लेते हैं इसको अंग्रेजी में इन्होंने किस तरीके से हमने इसका उत्तर दिया है। दे वर प्लेइंग, या दे वर प्लेइंग फुटबॉल ऑल आफ्टरनून, द होल आफ्टरनून, दोनों काम कर जाएंगे। दिख रहा है आप सभी को नीचे? रुबिना, इंग्लिश में दिख रहा है सेंटेंस आपको? एवरीवन इज Yes, इट sir. राइट? दिख रहा है आपको? चलिए, हाउ डू यू से सर दिख रहा है? यस सर दिख रहा है, कैसे बोलते हैं इसको इंग्लिश में? Yes, sir. I can see. हाँ, आई कैन सी तो होता नहीं, मैं देख सकती हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है। बताइए। It's visible. एग्जैक्टली, यस सर, इट्स विजिबल, इट्स विजिबल टू मी, वेरी गुड। Yes, sir. हाँ, इट इज विजिबल टू मी, ग्रेट। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, चौथा सवाल। जब बत्ती चली गई, बत्ती चली जाना मतलब लाइट का चला जाना, ओके, और तब हम टीवी देख रहे थे। चलिए आप बताइए साक्षी। Yes, sir. We were watching TV when the lights went out. वेरी गुड, वी वर वॉचिंग टीवी व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, वेरी गुड। वेंट आउट देख लेते हैं, इसको लिखने का तरीका भी मैं आपको दिखाता हूं ताकि आसान रहे। या वेरी गुड, वी वर वॉचिंग टीवी व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। मिल गया सभी को? यस, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लाइट हम लोग को है ना अंग्रेजी में ये नहीं बोलना द लाइट जो है, यू नो, द लाइट वेंट आउट इज करेक्ट, और देयर वाज अ पावर कट, लाइट चले जाना यानी देयर वाज अ पावर कट, व्हेन देयर वाज अ पावर कट, व्हेन देयर वाज अ पावर कट, देयर वाज अ पावर कट, राइट, व्हेन देयर वाज अ पावर कट, बिजली गुल हो जाती है ना बिजली, तो देयर वाज अ पावर कट, ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आई वुड आस्क सरिता, सरिता बताइए 5वां वाक्य। वह कल रात अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। Yes, sir. या सरिता बताइए। सर, 5वां ना? हाँ 5वां। आपके बैकग्राउंड में बड़ा म्यूजिकल एम्बियंस है, कहीं पार्टी में आए हुए हैं क्या आप? नहीं sir. नहीं, ओके, मुझे लगा कि आज तीन बस. आज फ्राइडे की क्लासेस थी। ओके, सो बताइए। He was preparing for his exam last night. या वह कल रात अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। He was preparing for his exam last night. Very good. Last night he was preparing for his exam. देख लेते हैं एक बार। Yes, sir. Very good. He was studying, ये भी ठीक है। He was studying for his exam. He was preparing for his exams last night. ठीक है? Right? Everyone okay? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, या सरिता, थैंक यू, यू कैन बी ऑन म्यूट नाउ। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। कृष्णमन्यु बताइए, प्रश्न है, जब उनके माता पिता घर आए तब बच्चे सो रहे थे। Yes, sir. बताइए। So, अपने just the meaning
when when Yes. When I नहीं आई क्यों when जब उनके माता पिता घर आए when so when दे नहीं उनके माता पिता क्या यूज करेंगे एनीवन अनम्यूट करके बताइए उनके के लिए क्या यूज करते हैं हम There. their their उनके अब याद कीजिए वाला टॉपिक है जो हमने थोड़ा सा फटाफट से देखा था माय फादर या माय बुक योर बुक हिज बुक हर बुक राइट एंड देन आर बुक our book and their book their so their यूज करेंगे हम इसमें तो when their parents क्या हुआ घर आए कैसे बोलेंगे when their parents या so अपने when their parents house हाउस से पहले क्रिया लगाओ ना कृष्णमन्यु जब उनके पेरेंट्स घर आए आने के लिए क्या क्रिया होती है टू कम या टू अराइव तो क्या बोलेंगे हम yes when the parents came when the Came. parents came home तब क्या हो रहा था तब बच्चे सो रहे थे तो how would you say the children were sleeping हाँ एग्जैक्टली फाइनली आपने हमें फटाफट बताया सो when the children were sleeping when the parents came home ठीक है the children were sleeping when their parents sir. came home अन्यथा when their parents came home the children were sleeping ठीक है यहां तक सभी को ओके है साक्षी रुबिना चलिए ग्रेट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारे पास जब मैंने दुर्घटना देखी तब मैं काम पर जा रहा था जब मैंने दुर्घटना देखी तब मैं काम पे जा रहा था। हाँ तो मेरे काम पे जाने का एक्शन चल रहा था और अच्छा। हाँ When I saw the event, या I was going for work. या आई वॉज गोइंग टू माई वर्क या आई वॉज गोइंग टू I was वर्क going to my work. या जब मैंने दुर्घटना देखी एग्जैक्टली सो हम देख लेते हैं इसका ओके सो आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क ये भी ठीक है क्योंकि मैं ड्राइव करके जा रहा था जो आपने कहा आई वॉज गोइंग टू वर्क भी ठीक है रुबिना व्हेन आई सॉ द एक्सीडेंट क्लियर है सभी को एवरीवन प्रांजल तो when was the accident इसको पहले बोल दिया था। कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है यू हैव दैट लिबर्टी बस आपको ध्यान रखना है कि when I saw the accident I was driving to work तो ये ध्यान रखना है कि आपको हाँ। when के साथ रुबिना सिंपल पास्ट सटा के रखना है लगा के रखना है और दूसरे हिस्से में आपको बोलना है पास्ट कंटिन्यूस चाहे दूसरा हिस्सा मतलब है कि वो दो अलग अलग टुकड़े हैं देयर टू पीसेस उनको ऐसे या ऐसे कैसे भी रख सकते हैं बट यू हैव टू इंश्योर यू डोंट हैव टू मिक्स देम अप राइट Okay. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी हैव नंबर 8 okay I'll quickly check with whom have I not asked we'll ask all right राजेश्वरी आप बताइए नंबर 8 वह फोन पर बात कर रही थी और साथ में कॉफी बना रही थी I was talking. I was making coffee. Then I was talking. ठीक है I was talking on phone and I was making coffee I was preparing coffee yeah Coffee. हाँ इसमें दोनों ही एक्शन पास में चल रहे हैं कोई एक एक्शन के होने पे दूसरा नहीं हुआ है ना दोनों ही चल रहे हैं मतलब आप अपना कल की बात बता रहे हैं मैं एक तो फोन पे बात कर रही थी और कॉफी बना रही थी तब अचानक से घंटी बजी ऐसी कोई बात है Yes, sir. राइट सो 8th वाला एक बार देख लेते हैं सो इट गोज लाइक दिस या सिंस उसकी बात है वह थी तो आपने खैर आई कर दिया सो शी वाज टॉकिंग ऑन द फोन व्हाइल मेकिंग कॉफी ये भी हो सकता है शी वाज टॉकिंग ऑन फोन व्हाइल मेकिंग कॉफी क्योंकि अगर सिर्फ दो ही एक्शंस थे और साइमल्टेनियसली चल रहे थे तो हम उसमें व्हाइल लगा सकते हैं व्हाइल राइट व्हाइल मेकिंग कॉफी सो शी वाज टॉकिंग ऑन द फोन व्हाइल मेकिंग कॉफी हम चाहे तो एंड भी लगा सकते हैं इसमें जब हम एंड लगाते हैं तो हम सीरीज ऑफ इवेंट्स बताते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स खूब सारे इवेंट्स साथ में चल रहे हैं और सब आईएनजी में चल रहे हैं लेकिन आप खुद ही सिर्फ दो एक्शन साथ में कर रहे हैं नॉट अदर एक्शंस आर गोइंग
not other actions are going anymore along. In that case you have just two actions and they go simultaneously. तो आप क्या बोलते हैं? I was talking on phone while I was making coffee. तो आप क्या करते हैं? और कट शॉर्ट कर देते हैं राजेश्वरी, आप कहते हैं I was talking on phone while making coffee. क्लियर है सभी को? while के दौरान. Is that okay everyone? Yes, sir. उदाहरण के लिए ये वाला कौन बताएगा? मैं खाना खा रहा था और टीवी देख रहा था. हाथ रेज कर दीजिए. हाँ, रुबीना का हाथ आ गया. बताइए रुबीना. या रुबीना, you'll have to unmute yourself, रुबीना. Oh, sorry. Yeah. I was having food while watching TV. Very good. I was having food while watching TV. ये भी ठीक है ना? मतलब ये बेहतर माना जाएगा while लगा के. तो उससे क्या हमारे शब्दों की संख्या कम हो जाती है and it's more impactful. Otherwise we would have said I was watching TV and I was having food, or I was having food and I was watching TV. ये भी गलत नहीं है. ये सारे इवेंट्स को सेपरेटली बता रहा है. लेकिन while और उसको स्पष्ट कर देता है कि उसी क्षण जब मैं खाना खा रहा था या खाना खा रही थी, मैं टीवी भी देख रहा था. राइट? इस तरीके से. All right, let's move quickly ahead. Next one that we have is the ninth one. जब बारिश शुरू हुई तब वे बस का इंतजार कर रहे थे. Whom have I not asked? किससे पूछूंगा मैं? साक्षी, आप बताइए. सर सॉरी मैं नहीं दे सकती. क्यों? आप क्यों नहीं दे सकते? बताइए. Why? Is it difficult? यस सर. ट्राई तो कीजिए कम से कम. आप तो पहले हार मान गए. ऐसे थोड़ी होता है आप सारे जवाब देते हो. जब बारिश शुरू हुई तब वे बस का इंतजार कर रहे थे. बताइए साक्षी, ट्राई तो कीजिए. आप बताइए इसमें कौन सा एक्शन है जो कंटिन्यू चल रहा था पास्ट में, और कौन सा एक्शन है जो चालू हो गया, और मतलब उसकी बिगनिंग हो गई, यानी वो. सॉरी. I'll try. I'll try. Very good. When start raining? Hmm. When they waiting bus. Okay. इसको थोड़ा सा और दुरुस्त करते हैं, बाकी हिस्सा हम दूसरों से सुनते हैं. आप वेटिंग जब आपने बोला साक्षी, तो आपके दिमाग में ये तो आना चाहिए, आई एम श्योर वॉज या वर्ड लगना चाहिए. Yes sir. है ना? तो बताइए इतना हिस्सा सही कर दीजिए. दे वर वेटिंग फॉर द बस. ठीक है? दे वर वेटिंग फॉर द बस. ये तो ठीक है? Yes sir. वो बस की प्रतीक्षा कर रहे थे. चलिए कोई किसी और ने हाथ रेज किया. राजेश्वरी, बताइए राजेश्वरी, पूरा वाक्य बना दीजिए. They were waiting for the bus when rain started. Okay, when rain started. ठीक है? I don't know, मैंने शायद इसमें आपको थोड़ा सा परिवर्तन सिखाया था. When it started to rain. When it started to rain. ये बेहतर तरीका होगा, right? When it started to rain. जब बारिश होना प्रारंभ हुई. They were waiting for the bus. ठीक है? आपने जो बोला राजेश्वरी, आपने कहा when it rained. नहीं, आपने क्या बोला था? When rain started. When rain started. Right, ठीक है. When the rain started. हाँ, वो एक्चुअली क्या वर्ड टू वर्ड है. बारिश शुरू हुई. Right? So आप बोलेंगे अंग्रेजी when it started to rain. When it started to rain. Right? Okay. एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या हमारे को. हम इसमें एक और आपके लिए ट्रांसलेशन जो लेके आए वो. Yeah, they were waiting for the bus when it started to rain. ठीक है? समझ में आ गया आपको? They were waiting for the bus when it started to rain. ये बेहतर तरीका है, क्योंकि हम क्या करते हैं, रेन को आप काम में ले रहे हैं एज अ नाउन, एक संज्ञा के रूप में. When the rain started. लेकिन हम काम में ले रहे हैं when it started to rain. To rain मैं काम में ले रहा हूँ एज अ क्रिया. To rain. राइट? तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखिएगा. चलिए आखिरी वाक्य देख लेते हैं हम. अरबाज, आप सुनाइए, आप बताइए हमारे को. वह संगीत सुन रहा था और कसरत कर रहा था. और मैं और लिखना चाहता हूँ. और वह संगीत सुन रहा था और कसरत कर रहा था. बताइए. He was listening music and exercising. देखिए
या तो आप ऐसे बोलिए इसको अरबाज, ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक एंड ही वॉज एक्सरसाइजिंग, ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक एंड ही वॉज एक्सरसाइजिंग। अन्यथा आप वाइल लगा सकते हैं, WHILE। तो आप कैसे बोलेंगे अरबाज? ही वॉज He was listening music while exercising. वेरी गुड, ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल एक्सरसाइजिंग या वाइल वर्किंग आउट। बोलते हैं ना वर्कआउट करना, वर्कआउट करना, तो उसमें वर्किंग आउट बोलेंगे, ठीक है, वाइल एक्सरसाइजिंग या वाइल वर्किंग आउट। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, great. These are very important sentences because we tend to use these sentences when we want to show certain things in past that have finished and that were still going on. जब टेलीफोन बजा तब मैं गाना गा रहा था, जब वो लोग आए तब हम टीवी देख रहे थे, राइट? इस तरह के सेंटेंसेस आपकी बोलने की इच्छा होगी तब आप हमेशा इस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी का तो होमवर्क है, ताकि आप वीकेंड पे बोरियत नहीं आपको महसूस हो। आपको खूब सारा काम हमने दे दिया है, इसको आप करिएगा। आगे बढ़ते हैं। बोर तो नहीं होंगे आप वीकेंड पे? No, sir. नो सर, बहुत काम है सर हमारे पास, वैसे आप और काम मत दो हमारे को, ऐसा तो नहीं है आपका फील? No, no. तो फिर तो बहुत सारा काम ले लीजिएगा, जो मैंने काम दिया वो सारा करना है आपको। ओके, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। अब आप कहोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट तो हमें याद है, अभी पास्ट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कौन मुझे याद दिला सकता है? एनीवन? साक्षी, चलिए साक्षी बताइए क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, कैसे बनता है, उसका क्या मतलब होता है, बताइए Yes, sir. बताइए। सर जो हो चुका होता है उसमें हेड लगता है। नहीं कौन सा मैं प्रेजेंट परफेक्ट कह रहा हूँ साक्षी, आप ये तो नहीं बता रहे ना, पास्ट परफेक्ट तो नहीं बता रहे ना, प्रेजेंट परफेक्ट No, बताइए। no. हाँ बताइए। जो काम हो चुका है, मतलब जैसे she was eating, oh sorry, she had eating, शी हैज, she had eating, वह खा चुकी है। हाँ लेकिन उसको आप इस प्रकार से तो नहीं बोलेंगे ना। आप एक बार और अच्छे से समझाइए साक्षी। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट हैव और हैज के साथ बनता है और साथ में थर्ड फॉर्म लगता है, याद है आपको? Yes, sir. Sorry, sir. Sorry. अब बताइए, कोई वाक्य बताइए। मैं खा चुकी हूं, कैसे बोलते हैं साक्षी? मैं खा चुकी हूं, मैंने खा लिया है, मैंने खा Yes, sir. लिया है, कैसे बोलेंगे? मैंने खा लिया है। I had ate food. क्या बोलेंगे? एनीवन एल्स? मैंने खा लिया है। I had ate food. Eaten. Eaten. I have eaten. साक्षी, थर्ड फॉर्म लगता है ना, eat, ate, eaten। याद आया आपको? अच्छा, सेकंड फॉर्म बताइए थी, सॉरी सर। हाँ, देखिए सेकंड फॉर्म जो होता है साक्षी, उसके साथ कभी भी कोई भी हेल्पिंग कंपोनेंट नहीं आएगा, ध्यान रखना आप। I ate, खत्म। I sang, I spoke, I wrote, I made। उसके साथ कभी भी, सब लोग अच्छे से सुन लीजिए, सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी बीच में कोई और कंपोनेंट नहीं आता है, नेवर एवर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर डाउट भी हो ना कि आई हैव एट बोलूं क्या, तो याद करना, पर एट तो सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के साथ कभी नहीं आता, तो आई एट होगा एक तरफ, अन्यथा आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। तो मैं एक बार आपको आई हैव ईटन लिख के बता रहा हूं। आई हैव ईटन, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। सभी को याद है प्रेजेंट परफेक्ट? यस सर। ठीक है, आई कैन सी दीप्ति जी। दीप्ति, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग? Are you there, Deepti? Good evening. All right, nevertheless, she will carry on. So, I have eaten का मतलब होता है मैंने खा लिया है, ठीक है? ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। सभी को स्पष्ट है ये वाला टॉपिक? अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज, इसी के और एक स्टेप पीछे जाएंगे एवरीवन। अब हम आज किस में जा रहे हैं राजेश्वरी? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे बोलते थे हम? मैंने खा लिया है, ठीक है, आई हैव ईटन। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब पीछे जाएंगे और हमें बोलना है मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया था। जिसको आप ये भी बोल सकते हो अरबाज, मैं खा चुका था, ठीक है, मैं खा चुका था। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था। ये जब था लगता है ना हिंदी के अंदर, तो आप समय में और पीछे चले जाते हो। हाँ वो तो मैंने पिछले साल ही कर लिया था,
अच्छा वो डॉक्यूमेंट तो हमने वो तो 2 साल पहले जमा करा दिया था। हम ये थोड़ी बोलते हैं अरे वो तो हमने 2 साल पहले ही जमा करा दिया है नहीं था। ये समझ में आता है सभी को? रुबिना, आई डोंट नो आप हिंदी में थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे? ठीक है, क्लियर है? Yes, ओके, sir. तो पास्ट में जाना है और पास्ट के अंदर उस एक्शन को ट्रैवल करके बताना कि वो पास्ट में ही समाप्त हो चुका था। तो अब देखिए उसका लेना देना बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट जैसा ही है, बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पे हैव और हैज आता था, इस वाले में सब जगह हैड आएगा। आपका काम बड़ा आसान है। और आगे कौन सा फॉर्म लगाना है हमारे को? Third form. थर्ड फॉर्म याद है सभी को? मुझे बताइए। ईट का थर्ड फॉर्म? Eaten. ईटन। सिंग का थर्ड फॉर्म? संग। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म? ड्रंक। ओके, राइट का थर्ड फॉर्म? रिटन। स्पीक का थर्ड फॉर्म? स्पोकन। और ड्राइव का थर्ड फॉर्म? ड्रिवन। और टू गिव का थर्ड फॉर्म? गिवन। वेरी गुड। और क्लीन, साफ करना, क्लीन का थर्ड फॉर्म? क्लीन। ये वो वाले हैं जो ईडी लेते हैं और जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। याद है आपको? क्लीन्ड, राइट? टॉक का थर्ड फॉर्म? टॉक्ड। ठीक है, याद है? तो मैं बोल देता हूं आपके लिए। सिंग हमारी क्रिया है, ऐसा ही जी। सिंग, संग, ड्रिंक, ड्रंक, ईट, ईटन, स्पीक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटन। ये जो गाने हैं उनको याद करके रखिएगा। आपको मैंने पीडीएफ भेजे हैं व्हाट्सएप पे, उनको खोल के देखिएगा। देखा आप लोगों को समय मिला? डिड यू सी? हाँ, 4-5 स्टेप्स हैं आपको मिले। डिड यू गेट? यस, भेजे हैं तो मिले होंगे। डिड यू गेट? सही है क्वेश्चन अरवाज? डिड यू गेट या डिड यू गॉट? Yes, sir. I got. हाँ, आई हैव गॉट या आई डिड गेट, दोनों ठीक है। तो पहला, यस सर, वी रिसीव्ड इट एंड वी सॉ इट एज वेल एंड वी रेड इट एज वेल एंड वी अंडरस्टूड इट एज वेल। एज वेल मतलब भी, हमने देख भी लिया, हमको मिल भी गया, हमने देख भी लिया, हमने पढ़ भी लिया और हम समझ भी गए। सो वी गॉट इट सर, वी सॉ इट सर, वी रेड इट सर एंड वी अंडरस्टूड इट सर। ठीक है? इज दैट ओके? चलिए, सो थर्ड फॉर्म्स वहां से उठाइएगा, आईएनजी फॉर्म्स वहां से उठाइएगा, सेकंड फॉर्म्स वहां से उठाइएगा, मुख्य क्रियाओं को वहां से उठाइएगा और उन सभी क्रियाओं का मीनिंग हिंदी में लिखा हुआ है वो भी वहीं से उठा लीजिएगा। चलिए, तो बड़ा आसान काम है। आई हैड ईटन फूड, कौन समझाएगा इसका मीनिंग क्या होता है? हाथ रेज करिए। आई हैड ईटन फूड, या प्रांजल बताइए। मैंने खाना खा लिया है। हाँ, है या था? सर। था। यानी आप कहोगे मैं खाना खा चुकी थी, मैंने खाना खा लिया था। जैसे किसी ने कहा अरे उस दिन शादी में गए थे प्रांजल, खाना नहीं खाया था क्या? अरे मैंने खाना खा लिया था उस दिन, मैं खाना खा चुकी थी। तो आप क्या पास्ट में चले जाओगे और वहां पे उसको कंप्लीट करोगे। ठीक है? तो आप ये तो बोलोगे, आप ये तो कहोगे अब मैं उस दिन शादी में गई थी तो मैंने वहां पे खाना खा लिया है। नहीं, कोई सेंस नहीं बना है। नहीं, मैंने उस दिन खाना खा लिया था। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, इवन इफ यू सेड मैंने खाना खा लिया, तो भी लगा अरे खा लिया नहीं, कुछ आगे बोलो। बिकॉज हम जब पिछले साल दिल्ली गए थे तब हमने वहां पे आई डोंट नो लाल किला देखा, आगे था। एग्जैक्टली अगर आप सिर्फ देखा पे रुक जाओगे ना तो भी सामने लगेगा कुछ मिस हो रहा है, उसको कंप्लीट करो। देखा था, क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है? बताइए, नाम क्या है इसका? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट यानी वो एक्शन पूरा हो चुका है, मतलब पास्ट में भी पूरा हो चुका है, राइट? ओके, सो आई हैड ईटन फूड का मतलब है मैंने खाना खा लिया था, या मैं खाना खा चुका था, या मैं खाना खा चुकी थी, दोनों हो सकते हैं, राइट? चलिए, राजेश्वरी आप बताइए, व्हाट डज दिस मीन? ही हैड रेड द बुक। ही हैड रेड द बुक। उसने किताब पढ़ ली थी। एग्जैक्टली, उसने किताब पढ़ ली थी। बहुत पुरानी बात है ये, उसने किताब पढ़ ली थी। हाँ, अब तो यू नो दैट्स समथिंग वेरी ओल्ड। अब ये बनता कैसे है? बहुत आसान है इसका बनना। आप कैसे बनाएंगे इसको? आप सब्जेक्ट के साथ हैड और थर्ड फॉर्म लगा देंगे।
ओके, अब इसकी भी एक विशेषता है। मैं समझ चुका था, मैं जा चुका था, वो पढ़ चुके थे, उन्होंने देख लिया था। अच्छा, ये बात तो आप लोग ओके हैं? वो देख चुके थे या उन्होंने देख लिया था, दोनों एक ही वाक्य हैं? ये तो ठीक है सब लोग, हिंदी वाले वाक्य ठीक है? ओके, ये दोनों जो हैं वो हमारे पास्ट परफेक्ट हैं, ये तो आप ओके हैं। आप ये मत सोचना सर इनके लिए अलग अलग वाक्य हैं, नहीं, एक ही वाक्य होगा अंग्रेजी का। जो प्रांजल ने कहा कि मैं खाना खा चुकी थी या मैंने खाना खा लिया था, both are one, which in English translates as I had eaten food. ठीक है? अब ये जो वाक्य होते हैं रुबिना, ये भी आइसोलेशन में you don't find them, they are always coupled with another construction, which means ऐसा ऐसा हुआ तब वो हो चुका था। उदाहरण के लिए, जब मैं पहुंचा तब वो जा चुके थे, उसने अपना काम पूरा कर लिया था, ये आइसोलेशन में चला है। हम फिल्म देखने से पहले खाना खा चुके थे, या हम फिल्म देखने से पहले हमने खाना खा लिया था। तो चलिए ये वाला कैसे बनाएंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ भी साक्षी, जब मैं पहुंची वे जा चुके थे। When I arrived, they had left. Exactly. When I arrived, they had left. तो आपका तो इधर पहुंचना हुआ और उधर उनका जाना हुआ, तो आपका पहुंचना हो गया सिंपल पास्ट और उनका उसी से पहले चले जाना हो गया पास्ट परफेक्ट। समझ में आता है आपको राजेश्वरी, दीप्ति? Yes, sir. ठीक है दीप्ति, am I audible? Right? Okay. So whenever it is, yeah, thank you Deepti, you can be on mute now. Okay, great. So आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, वो पास्ट के अंदर चला जाता है, बहुत पुरानी बात बताता है। हम दिल्ली गए थे, हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था, ये सब नरेशन में काम आता है, नरेट करने में, और बहुत पास्ट में जाता है ये। उस समय क्या होता है, कई बार हमें कोई और घटना भी साथ में बतानी होती है। इन दैट केस वी वुड यूज वन एक्शन दैट इज इन पास्ट, सिंपल पास्ट, और उससे पहले कुछ और हो जाता है। जब मैं उसको बुलाने के लिए गया तब वो पहले ही जा चुका था, राइट? जब मैंने उसको बात बताई वो उससे पहले ही समझ चुका था। ठीक है, इस प्रकार के एक्शंस होते हैं। तो जो इन्होंने कहा साक्षी ने, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंची, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, दे हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी हम लगा लेते हैं थोड़ा सा और बेहतर बन जाएगा। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, दे हैड के साथ यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो पहले ही जा चुके थे। ठीक है, पहले ही। चलिए, उसने अपना काम पूरा कर लिया था। अरबाज, ये कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, पढ़ के बताइए और मीनिंग बताइए। He had finished your work, his work. हाँ, he had finished his work, he had finished his work। इसका क्या मतलब है अरबाज? उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वेरी गुड, उसने अपना काम पूरा कर लिया था, अन्यथा वह अपना काम पूरा कर चुका था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं हम लोग। कौन है जो इस वाक्य को बना पाएगा? जब मैं उससे मिला, जब मैं उससे मिला तब वो अपना काम पूरा कर चुका था। हाथ रेस कीजिए। जब मैं उससे मिला तब वो अपना काम पूरा कर चुका था। चलिए अरबाज आप बता दीजिए। When I met him, When- he had finished your work. He had finished his work, तो as it is आपने उठा लिया। ठीक है, उसके पहले क्या बोला आपने अरबाज? When When I met him. when I के बाद वाला शब्द अच्छे से बोलिए। When I Met. met, When I met. when I met him, very good. When I met him, he had already finished his work. When I met him, he had already finished his work. ठीक है, met की स्पेलिंग क्या होगी अरबाज? met E-T. MET है ना, MET। Yes, sir. और ये कौन सी क्रिया से आया है, क्या है वर्ब, इसका मुख्य क्रिया क्या है? टू, Ticket. टू मीट, टू मीट, Yeah. मिलना है ना। चलिए, ओके, मीट वर्ब है, टू मीट इसका Meet वर्ब है और मेट सेकंड फॉर्म है उसका। ओके, और इसका थर्ड फॉर्म मेट। met। anyone, what is the third form for meet? meet, met, or third form? Met. The meet, to meet, meet, met, met. Okay, so that's correct. meet, met, met, meet,
met meeting, meet met meeting, met ही रहता है, तो ये दोनों सेम चलते हैं, met। ठीक है, आप हमेशा एवरीवन जब भी आप कोई नया वर्ब देखें या पुराने वर्ब्स ही आप अगर याद करें तो हमेशा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लिखना ना भूलें, प्रैक्टिस इट, राइट? ओके, सो व्हाट अरवा सेज इज व्हेन आई मेट हिम ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी उसको समझाने की कि क्या काम करना है, मैं तो इसलिए मिला उससे ताकि उसको समझा था मैं उसको क्या काम करना है, बट व्हेन आई मेट हिम ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। दैट मेक्स सेंस राजेश्वरी, प्रांजल, इज दैट ओके? Yes, sir. राइट, Yes, sir. ग्रेट। चलिए एक और ट्राई करते हैं, वील आस्क सरिता। सरिता, हमने फिल्म देखने से पहले खाना खा लिया था। या सरिता? Sir, या पढ़ दीजिए वाला, हमने फिल्म देखने से पहले खाना खा लिया था, ये वाला बताइए। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सरिता? वी yes, sir. पढ़िए। We ate before watching the movie. Okay. We had eaten before watching the movie. We had eaten before watching the movie, right? मूवी देखने से पहले हमने खा लिया था, हम खा चुके थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आप एक एक्शन करने वाले होते हैं उससे पहले एक और एक्शन कर चुके होते हैं, तो ये तो आपको पता है कि एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो जाएगा, राइट? तो आप जो एक्शन पहले हुआ है उसको आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और आप बिफोर का मतलब है इस चीज के पहले, ये लिखा भी बिफोर ही गया है, राइट? सो वी हैड ईटन बिफोर, और उसके बाद वाले एक्शन को आईएनजी से आप बता सकते हैं। सो बिफोर वॉचिंग, आपको याद है हमने अभी जो पुराने वाले में देखा था तो वाइल देखा था, अगर आपको याद है, वाइल एक्सरसाइजिंग, राइट? वाइल याद है आप सबको? WHILE, वाइल, एवरीवन? Yes, sir. तो वाइल क्या होता है, जब दो एक्शन साथ में चल रहे होते हैं, आईएनजी। जैसे उदाहरण देता हूं, वापस से याद कीजिएगा, आई वॉज ईटिंग फूड वाइल वॉचिंग टीवी। आई वॉज ईटिंग फूड वाइल वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखते हुए खाना खा रहा था, राइट? आई वॉज ईटिंग फूड वाइल वॉचिंग टीवी। तो हम वाइल के बाद क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, ये हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, बिफोर के साथ भी हम, यानी बिफोर के जस्ट बाद हम आईएनजी वाला फॉर्म डालेंगे। सो इसका क्या हो जाएगा, we had eaten before watching the movie. Is that okay? Yes, sir. एक और ट्राई करते हैं। सरिता आप नहीं, नॉट सरिता, राजेश्वरी आप बताइए। ओके, सो हम जा चुके थे उनसे बात करने से पहले, हम उनसे बात करने से पहले जा चुके थे। We were left before talk उनसे बात करने से पहले, हाँ, before we had talked. ओके। वी के बाद आपने वर्क क्यों बोला आपने, राजेश्वरी? आपको वी हैड बोलना था ना, वी हैड लेफ्ट, हम जा चुके थे, We had. है ना? वी हैड लेफ्ट, तो वी हैड लेफ्ट के बाद बिफोर टॉकिंग टू देम, बिफोर टॉकिंग टू देम, वी हैड लेफ्ट Left before बिफोर टॉकिंग टू देम, यानी उनसे बात करने के पहले ही हम जा चुके थे राजेश्वरी। अगर हम उनसे बात करने के बाद जाते ना तो आप लगाते आफ्टर। वी हैड लेफ्ट आफ्टर टॉकिंग टू देम, वी हैड लेफ्ट बिफोर टॉकिंग टू देम। समझ में आता है सभी को, एवरीवन? राइट, इस प्रकार से आपको राइट। ओके, वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट या वी हैड लेफ्ट बिफोर टॉकिंग टू देम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव कैसे बनता है इसका, आपको लगाना है नॉट करके। तो आप ट्राई कीजिए, रुबिना। जब मैं पहुंची वे नहीं गए थे, दे वर स्टिल देयर, वो नहीं गए थे। जब मैं पहुंची वो नहीं गए थे, when I arrived they had not left. वेरी गुड, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंची, फॉर्चुनेटली वो वहीं पे ही थे, दे हैड नॉट लेफ्ट, वो लोग वहीं पे थे, मैं मिल ली, अच्छा हुआ। सो व्हेन आई अराइव्ड दे हैड नॉट लेफ्ट, परफेक्ट। नेक्स्ट,
आई आस्क साक्षी। साक्षी आप बताइए, उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। he had not finished his work. परफेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं साक्षी। जब मैं उससे मिली तब उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। I met them. ठीक है। He is not work. ये तो आपने बोला था ना, इसको क्यों चेंज कर दिया आपने? तो सही बोला था आपने, he had not finished his work, ये तो सही है, राइट? उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। इसके साथ आपको क्या बोलना है? जब मैं उससे मिली। कैसे बोलते हैं जब मैं उससे मिली? When I meet his. लिख देता हूं, when I meet him। आपको लगता है साक्षी when I meet him होगा? इसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए, meet नहीं होगा। जब मैं उससे मिली, कौन सा टेंस है? जब मैं उससे मिली। ओके, एनीवन एल्स? When I met him. when I met him, isn't it Sakshi? When I met him, जब मैं उससे मिली, simple past। when I Yes. met him, when I met him, जब मैं उससे मिली, he had already finished his work, या he had not finished his work। जब मैं उससे मिली तब उसने अपना काम नहीं किया था। वो तो मेरे जाने के बाद उसको लगा कि अब ये आ गए हैं, अब ये मांगेंगे काम मुझसे, तो मैं कर लेता हूं, तब उसने किया, नहीं तो उसने किया ही नहीं था। So when I met him, he had not finished his work। Is that okay everyone? समझ में आ रहा है सभी को? रुबिना, is that clear? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने फिल्म देखने से पहले खाना नहीं खाया था। बताइए प्रांजल, आप ट्राई कीजिए वाला, पढ़िए एक बार। We had not eaten before watching the movie. एग्जैक्टली, वी हैड नॉट ईटन। आपको क्या लगा हम फिल्म देखने के पहले खा लेते खाना? वो तो हम फिर बाद में गए थे डिनर करने, तो आपको कंफ्यूजन था। वी हैड नॉट ईटन बिफोर वॉचिंग द मूवी, वी एट आफ्टरवर्ड्स, राइट? और वी हैड ईटन आफ्टरवर्ड्स, हमने बाद में खाया था। सो वी हैड ईटन आफ्टरवर्ड्स। आप इसको क्लियर कर रहे हो इस बात को, वी हैड ईटन आफ्टरवर्ड्स, नॉट बिफोर। इज दैट ओके एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। या अब हम कुछ सेंटेंसेस पे आते हैं, और एक अच्छा प्रश्न भी तो बनाना है। प्रश्न भी तो बनाना है, कैसे बनाएंगे? क्या वो जा चुके थे जब मैं पहुंचा? मुझे याद नहीं आ रहा है। अरबाज, क्या वो जा चुके थे जब मैं पहुंचा? मुझे याद नहीं आ रहा। कैसे मैं प्रश्न बनाऊंगा? Hadn't he gone? आराम से वापस बताइए, वापस से। Hadn't he gone? जब मैं hadn't he gone? hadn't, जब मैं पहुंचा, hadn't he gone? हाँ, hadn't he gone? I ओके, इतना हिस्सा तो आपका सही है। when I reached, right? when I reached, जब मैं पहुंचा। जिसका वो राजेश्वरी ने भी कहा था कि reached भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। when I arrived, पहुंचा। when I returned, जो भी आप कहना चाहिए, but arrived and reached are correct। या जो प्रांजल ने कहा था when I entered the house, जब मैं घर में मैंने प्रवेश किया, तो तब वो जान ही चुके थे क्या? राइट? सो हाँ, मैंने खुद नहीं जान ही चुके थे क्या बोला था, तो आपने सही कहा कि had not आएगा। hadn't he, so hadn't he। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जो gone शब्द है ना, ये सही नहीं है। gone होता है गया हुआ होता है, वो व्यक्ति कहीं पहुंचा हुआ होता है। कहीं से चले जाने के लिए क्रिया क्या काम में लेते हैं? टू लीव, टू लीव। और टू लीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है अरबाज? left. लेफ्ट। तो कभी भी अंग्रेजी में आप ये नहीं कहेंगे hadn't he gone, hadn't he left, had not he left। वो गया नहीं था क्या? वो चला नहीं गया था क्या? चले जाना, hadn't he left। तो ये ठीक है, लेफ्ट आएगा यहाँ पे, L-E-F-T, राइट? दैट्स करेक्ट। hadn't he left when I reached। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, बिकॉज मैंने नेगेटिव करके बताया था आपको। वो चला नहीं गया था क्या जब मैं पहुंचा? had not he left, hadn't he left when I reached, when I arrived। दैट्स करेक्ट। ओके, बट इसको पॉजिटिव रखते हैं। क्या वो चले गए थे जब मैं पहुंचा? had they left। ये समझ में आता है राजेश्वरी आप सभी को? प्रांजल, had they left when I arrived। मुझे याद नहीं आ रहा है, इसमें पूछ रहा हूँ। had they left when I arrived? yes, or they had already left when you arrived। हाँ, वो तो जा चुके थे जब तुम आए। तुम तो लेट हो गए थे, इसलिए तुम्हें याद है उस दिन तुम कितना लेट आए थे? तो आपने yes, 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 I remember now।
when I arrived they had already left. When I arrived, जब मैं पहुंचा तब वो already जा चुके थे. Okay, इसी प्रकार से हम क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? कृष्णमन्यु, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया था? कैसे पूछेंगे कृष्णमन्यु? Yes, sir. Had he finished his work? Had he finished his work? Had he finished his work? क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया था क्या? Had he finished his work? Perfect. और इसका बताइए, we'll ask रुबिना, क्या हम फिल्म देखने से पहले खाना खा लिया था? मुझे याद नहीं आ रहा, उस दिन हम फिल्म देखने गए थे 2 हफ्ते पहले, तो हमने खाना खा लिया था क्या उससे पहले? So how do you ask this question? Had we then before watching that movie? Very good. Had we eaten? Had we eaten before watching the movie? Because I'm not remembering it. Maybe we had eaten afterwards, or I don't recall it anymore. So I'm asking a question to my friends with whom I had gone to watch the movie. So had we eaten before watching the movie? Right? Is that okay, everyone? Pranjal, Arvaz, समझ में आ रहा है आपको? Rajeshwari, Sakshi, Sarita, everyone else, Krishnamanyu, Rubina. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इनको हम ट्रांसलेट करते हैं. आ जाइए फटाफट से, पहले 10 वाक्य आप सभी के लिए. चलिए दिमाग लगाइए. मैंने फिल्म शुरू होने से पहले अपना होमवर्क खत्म कर लिया था. बनाइए. मैंने फिल्म शुरू होने से पहले अपना होमवर्क खत्म कर लिया था. हाउ डू यू मेक दैट वन इन इंग्लिश? Anyone who's ready with this sentence? हाथ रेस कीजिए कोई जो रेडी है. Oh, Arvaz is ready. चलिए अरबाज बताइए. कैसे बोलेंगे इसको? अरबाज अनम्यूट करके बताइए. बताइए. sentence कौन से बोल रहे सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? This sentence. Which subjects? Sentence. The first one, the first one. I couldn't hear you. पहला वाला बताइए. मैंने फिल्म शुरू होने से पहले अपना होमवर्क खत्म कर लिया था. Before the film started, I have completed my homework. I dash completed. I had completed my homework. Very good. I had completed my homework. मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था. कब कर लिया था आपने अपना होमवर्क खत्म? अरबाज? Before the film started. Okay, before the film started, exactly. और आप बताइए, और कोई ट्राई करना चाहेगा? रुबिना एंड राजेश्वरी, आपसे भी सुन लेते हैं फटाफट से. रुबिना बताइए, आपने क्या बताया है? Rubina, you'd like to try this one, the same one, the first one? मैंने फिल्म शुरू होने से पहले. Yeah. Yes sir, मैंने mute unmute नहीं किया था. हाँ, अच्छा. I have finished my homework before watching the movie. No, before starting the movie. Before started the movie. Okay, यहाँ कुछ गड़बड़ सा है, पर देखते हैं. राजेश्वरी, आप बताइए. I have finished work before starting the movie. Before starting the movie. Starting तो ये हो जाएगा कि जैसे मैंने ही चालू की थी फिल्म तो. हाँ, तो आप देखिए जो Before the movie started. हाँ, यही अरबाज ने कहा था. Before the movie started. तो I had already finished my homework before the movie started. जब फिल्म चालू हुई ना, उससे पहले ही मैंने अपना काम कर लिया था. ठीक है, तो before the movie started. चलिए आगे देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट. जब मैंने उसे फोन किया वह पहले ही जा चुकी थी. जब मैंने उसको फोन किया तब वो पहले ही जा चुकी थी. उसने कहा कि मैं तो जा चुकी हूँ, मतलब मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से. ट्राई कीजिए. बताइए बताइए. समवन एल्स? कृष्णमन्यु, सरिता, साक्षी, प्रांजल, बताइए. ट्राई कीजिए आप लोग भी. चलिए राजेश्वरी, आप बता दीजिए फटाफट से. She had left when I was called her. She had already left. ठीक है, already लगाए नहीं लगाए कोई बात नहीं. She had already left when I Was called her. ये was क्यों लगाया आपने? When I So when I called her. when I called her. was की तो आवश्यकता नहीं है. was से तो बिल्कुल गलत बन गया वाक्य. When I called her, she had already left. Is that okay, रुबिना? अरबाज, ये बोलना चाह रहे हैं आप भी? Yes sir.
अगर कोई दूसरा है आपका आंसर तो आप बता सकते हैं ना, हम चेक कर लेंगे. सो शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई कॉल्ड हर. ठीक है राजेश्वरी, समझ में आ गया आपको? Yes, sir. चलिए ओके आगे देखते हैं. तीसरा, उन्होंने समय सीमा से पहले परियोजना पूरी कर ली थी. ओ गॉड, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट. ज्यादा मत परेशान होइएगा, ये कौन सा शब्द दे दिया हमें सर ने. प्रोजेक्ट, राइट, प्रोजेक्ट. सो एंड टाइमलाइन, समय सीमा, टाइमलाइन, टाइमलाइन, TIMELIN, टाइमलाइन या डेडलाइन. डेडलाइन भी बोलते हैं ना कई बार हम लोग. डेडलाइन है समय सीमा, डेडलाइन, टाइमलाइन. चलिए, हु वांट्स टू ट्राई? साक्षी, वुड यू लाइक टू ट्राई? Before. या रुबिना, you'd like to try? Yes, sir. चलिए प्रयास कीजिए. Sir, उन्होंने today use he. नहीं, उन्होंने जनरली हिंदी में उन्होंने मतलब होता है काफी सारे लोग, दे, Oh, they. Okay. जब पता नहीं So होता है. today, they had finished their project Hmm. before the timeline has finished. हाँ, बिफोर, आप चाहें तो सिर्फ टाइमलाइन तक भी रह सकते हैं ना, बिफोर द डेडलाइन. Before the timeline. हाँ, not deadline. बिफोर द टाइमलाइन, बिफोर द डेडलाइन. दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन. वेरी गुड, परफेक्ट. चलिए साक्षी, अब आप ट्राई कीजिए प्लीज नेक्स्ट वाला. जब तक वे आए, या जब वे आए, तक नहीं हटा देना है. जब वे आए मतलब जब वो पहुंचे, तब क्या हो गया था? हम रात का खाना खा चुके थे. Yes, sir. बताइए. When they came, हाँ, when they came, we attend, we के बाद क्या लगाया आपने? we attend, क्या चीज? we were attend night food. When they came, we were, बोलिए. Attend night food. नाइट फूड तो डिनर बोलते हैं हम आपके लिए साक्षी, रात का खाना. डिनर बोल सकते हैं क्या, बताइए. Yes, sir. क्योंकि रात का खाना है सर वो. हाँ, तो उसके लिए तो अंग्रेजी में शब्द है ना डिनर, तो डिनर बोल देते हैं, रात्रि भोज, डिनर, राइट. Yes, sir. तो नाइट फूड जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हम उसको डिनर बोलते हैं. अब आप एक बात बताइए मेरे को साक्षी, ये तो ठीक है व्हेन दे केम, जब वो पहुंचे, हम खाना खा चुके थे, हम डिनर खा चुके थे, तो वी वर क्यों लगा रहे हैं आप? हम खा चुके थे, कौन सा टेंस है ये साक्षी? ये है पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट, तो क्या लगता है पास्ट परफेक्ट में? वर नहीं लगता, हैड लगता है, और थर्ड फॉर्म लगता है. तो थर्ड फॉर्म क्या होता है खाने की? Eaten. तो बस, तो क्या बन गया आपका सेंटेंस? पढ़ दीजिए. When they came, We had eaten dinner. हाँ, eaten नहीं, we had eaten dinner, we had taken dinner. Yes, sir. I'm very confused today. You're very confused today. What happened? You have lot many things going on. No, sir. Actually, मतलब मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था तो इसलिए confused ज्यादा हो रही हूँ आज. लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में तो आ गया है. Yes, sir. तो आपके- Concept समझ आ गया. तो आपको 2 दिन हम दे रहे हैं, शनिवार और रविवार का. अच्छे से पढ़िएगा. सोमवार को एक भी गलती नहीं करनी है आपको साक्षी, ठीक है? Yes, sir. चलिए ओके. सो एक बार देख लेते हैं फटाफट से सेंटेंस. सो वी हैड ईटन डिनर बाय द टाइम दे अराइव्ड, या व्हेन दे अराइव्ड, दोनों चलेगा, ठीक है? वी हैड ईटन डिनर या वी हैड टेकन डिनर व्हेन दे अराइव्ड. क्लियर है सभी को? राजेश्वरी, इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से. कितने हमने ट्राई कर दिए इसके अंदर? ओके, 2-3 और देख लेते हैं फटाफट से, फिर आगे एक और लास्ट वाला टेंस है जो मैं आपको सिखाऊंगा. ओके, नहीं ये तो मैंने अंग्रेजी के दिखा दिया आपको. ओहो, ये तो सारे उत्तर मिल गए आप लोगों को. हाँ, यहाँ वाले थे. चलिए ओके, अगला 5वां ट्राई कीजिए फटाफट से. 2 और करेंगे, 5वां और 6वां, फिर हम अगले एक आखिरी टेंस है वो सिखाऊंगा आज मैं आपको. उसने बैठक से पहले रिपोर्ट लिख ली थी. बैठक का मतलब मीटिंग हो जाएगा, यहाँ पे मीटिंग मान लेते हैं. चलिए मीटिंग. अरबाज आप ट्राई कीजिए. उसने मीटिंग से पहले रिपोर्ट लिख ली थी. या Had written the report या before राइट. क्या था? हाँ, मीटिंग से पहले. Before the
Meeting, before the meeting. Before the meeting. Very good. He had written the report, he had prepared the report before the meeting. ठीक है एकदम. और एक आखिरी चेक कर लेते हैं, जब हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी. ये किस किस के साथ हुआ है कभी किसी के साथ? हाथ रेस कीजिए पहले तो. ये वाली घटना किसी के साथ हुई है क्या? रुबीना ने सबसे पहले हाथ उठा लिया. ये भुगत भोगी, इनके साथ ऐसा हो गया. और बताइए, और किसी के साथ ऐसा हुआ है? पहले मैं वो वाले हाथ रेस करवाना चाहता हूँ ताकि मैं उनका दर्द समझ सकूं इस वाक्य के साथ. हमारे साथ तो हुआ है. आई नो इट. व्हेन वी वर किड्स वी यूज्ड टू जस्ट रन बिहाइंड द ट्रेन टू कैच इट एंड वी हैड मिस्ड इट वंस और ट्वाइस, आई रिमेंबर. या अच्छा, आपके साथ भी है राजेश्वरी. और एनीवन एल्स? प्रांजल, यू हैव नेवर मिस्ड योर ट्रेन, राइट? यू हैव ऑलवेज बीन ऑन टाइम. नहीं? Yes, sir. Oh, you are a punctual girl, that means. Okay. Arvaz, what about you? You have always found your trains on the station every time? No, I always punctual. Sorry, you have never missed your train? Yeah, sir. I Oh. am punctual. Oh, I'm a punctual person. Great. Punctual तो हम भी थे, पर वो ट्रैफिक बीच में आ गया, हम क्या करें उसके अंदर. चलिए, खैर कोई बात नहीं. So this one quickly with Rajeshwari will ask. जब हम स्टेशन पहुंचे तब ट्रेन जा चुकी थी. बताइए राजेश्वरी. The train had left before we arrived to station. Right, the train had already left when we arrived at the station. एकदम ठीक है. When we arrived at the station, so yeah, we reached. Before we reached, बिल्कुल ठीक है. The train had already left before या when, दोनों चलेंगे. Before we reached the station, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही. ठीक है. तो अगर आप पहले का सेंस है बिल्कुल सही है तो हम बिफोर यूज कर लेंगे, और जब का सेंस है तो हम उसमें व्हेन यूज करेंगे. तो आपका उत्तर एकदम ठीक है. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड एट द स्टेशन, बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन. ठीक है, क्लियर है सभी को? यस. Yes, sir. चलिए, तो हमें क्या करना है? हमें प्रांजल और अरबाज की तरह पंक्चुअल होना है. तो ट्रेन तो नहीं पकड़नी, वो तो मुझे पता नहीं आप कैसे ट्रेन पकड़ेंगे अब इसके आधुनिक समय में, बट अंग्रेजी पढ़ने के लिए और उसमें आगे बढ़ने के लिए हमेरी ट्रेन ना छूट जाए, हमें क्या होना पड़ेगा? पंक्चुअल. वील हैव टू बी वेरी पंक्चुअल, वील हैव टू बी वेरी सिंसियर, एंड वील हैव टू डू आवर होमवर्क एट टाइम, ऑन टाइम. चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से. आखिरी टेंस मैं आपको सिखाता हूं जिसका नाम है, थोड़ा लंबा सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आराम से देख लीजिए इसको एक बार, गहरी सांस ले लीजिए. टेंशन तो नहीं हो रही इसको देख के? प्रेजेंट, नो, ग्रेट. प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस और इस प्रकार का टेंस है. बताइए, हु कैन गेस व्हाट डज दिस टेंस मीन? सर, जो काम हो चुका है लेकिन वो उसका असर अभी तक, मतलब वो चलता आ रहा है अभी तक. पर जो काम पास्ट में बहुत देर तक चला. ठीक है, तो पहले सरिता से, आई एम सॉरी, पहले राजेश्वरी आपसे पूछता हूं मैं. आपने कहा कि जो काम सर पास्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस. सॉरी सर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जो काम मतलब बहुत देर तक चला है और अभी जस्ट फिनिश हुआ, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके. देखिए, परफेक्ट का मतलब होता है हो जाना, समाप्त. कंटिन्यू मतलब चलते रहना, और प्रेजेंट भी है. तो एक बार राजेश्वरी से सुन लेंगे, उन्होंने जो कहा. राजेश्वरी, आपने क्या कहा था, एक बार समझा दीजिए. सर, मैंने कहा था जो काम हो गया लेकिन वो अभी तक चल रहा है. अरे वाह, बड़ा रोचक सा है कि जो काम हो गया है पर अभी भी चल रहा है. बताइए, ऐसा कौन सा काम हो सकता है दुनिया में जो हो गया? कंप्लीट नहीं हुआ है सर अभी तक. अच्छा, No, complete one. ओके. सो ठीक है, आपकी बात सही है, मैं समझाता हूँ. हो जाना सर. ओके, परफेक्ट मतलब अभी अभी कम कंप्लीट हो गया. अच्छा, बिल्कुल ठीक है. ओके, सो आई थिंक यू ऑल आर लार्जली यू आर करेक्ट. सो समथिंग दैट स्टार्टेड इन पास्ट, इट वाज हैपनिंग, वो हो रहा था. ठीक है, हो रहा था तो उसका मतलब है वो कंटिन्यूस था, कि वो चल रहा था. और कहां पे आके रुका वो राजेश्वरी? वर्तमान में आके रुका, इसलिए वो परफेक्ट हो गया और वो प्रेजेंट तक आया. अब वो आगे होगा क्या अरबाज? हमें नहीं पता. अब वो आगे चलेगा, आई डोंट नो, बट वो पास्ट में चलता आ रहा था. और कहां तक चला? वो इस क्षण तक चला जिस क्षण पे मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं. ठीक है, इसलिए वो परफेक्ट कहलाया गया है अरबाज, क्योंकि यहाँ के वो रुक गया. पर क्या वो अब रुका है तो, लेकिन वो आगे बढ़ेगा क्या, वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उसको वहीं पे रोकता हूं, इसलिए वो परफेक्ट हो गया. तो आपको समझ में आ गया राजेश्वरी परफेक्ट क्यों? क्योंकि इट हैज स्टॉप्ड हियर. एंड व्हाई कंटिन्यूअस? बिकॉज़ इट वाज कंटिन्यूइंग टू हैपन टिल दिस पॉइंट एंड इट स्टार्टेड एज रुबीना सेड इन पास्ट. इस वजह से. चलिए, I have been studying for 2 hours. क्या मतलब है इसका राजेश्वरी? I have been studying for 2 hours. 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ. हाँ,
अब देखिए हिंदी में इसका एक और तरीका है बोलने का जो शायद आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। आई डोंट नो रुबिन आप समझ पाएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको भी हेल्प करूंगा। मैं 2 घंटे से पढ़ाई करता आ रहा हूं। मैं पढ़ाई करता आ रहा हूं बोलते हैं हम लोग कई बार। वो तुम 4 घंटे से टीवी देखते जा रहे हो, टीवी देखते आ रहे हो, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। और बात समझ में आता है आपको? Yes, sir. क्योंकि अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ राजेश्वरी, क्योंकि आपके दिमाग में प्रश्न उठ सकता है, पर सर ये तो लिखा है ना मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो हम इसको ये क्यों नहीं बोलते आई एम स्टडिंग? ऐसे बोल सकते हैं ना इसको राजेश्वरी, आई एम स्टडिंग? सर ये हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं। और सर वो जो सिंस लगाते हैं, आई एम स्टडिंग सिंस टू लास्ट 2 आवर्स, हाँ सिंस 2 आवर्स। हाँ ओके अब मैं आपको समझाता हूँ। जब हम कहते हैं आई एम स्टडिंग, तब इसका मतलब होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ इस क्षण में पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब हम कहते हैं आई हैव बीन स्टडिंग, तो आपको अगर पास्ट में अपने आप को सेटल करना है, पास्ट में अपने आप को लोकेट करना है, तो आपको यही टेंस यूज करना पड़ेगा। तो आई एम स्टडिंग काम नहीं करेगा। हिंदी में हम लोग कभी ऐसे रेयरली बोलते होंगे जिनको हिंदी आती है। किसी ने पूछा कितनी देर से पढ़ रहे हो? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। लेकिन हम ये नहीं बोलते मैं 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूं। अंग्रेजी में ये एक्चुअली यही है राजेश्वरी कि मैं 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूं अभी तक। समझ गए आप? तो इस प्रकार का ये वाक्य है जिसको हिंदी में ऐसे नहीं बोलते, पर अंग्रेजी में हैव बिन, हैज बिन करके बोलते हैं, और आईएनजी। ठीक है रुबिना, समझ में आता है आपको? सर ये पढ़ रही हूँ, सर have been को मैं पढ़ रही हूँ, और मैं studying, I'm studying now। हाँ जब आप बोलते हो ना कि व्हाट आर यू डूइंग रुबिना, सर आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ इस क्षण, इस समय, इस वक्त में पढ़ रही हूँ। मैं लेकिन मैंने कहा अभी 2 घंटे पहले क्या कर रहे थे? सर मैं 2 घंटे पहले से ही पढ़ती आ रही हूँ, मैं 2 घंटे से ही पढ़ती आ रही हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आई डोंट नो हिंदी में आप कंफर्टेबल कितना है इसको, लेकिन इसमें यही होता है कि यू हैव टू सिचुएट योरसेल्फ इन पास्ट। एक टाइम पकड़ना पड़ता है राजेश्वरी अरबाज, और वहां से ट्रैवल करना पड़ता है वर्तमान तक, टू द प्रेजेंट, और आपको बताना होता है कि मैं ये काम करता आ रहा हूँ, मैं तो सुबह से ही पढ़ रहा हूँ। किसने कहा? प्रांजल अभी पढ़ने बैठेगा? नो नो, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इजंट इट प्रांजल? Yes, sir. किसने पूछा? प्रांजल व्हाट आर यू डूइंग? पापा ने पूछा प्रांजल व्हाट आर यू डूइंग? पापा आई एम स्टडिंग। यू आर स्टडिंग नाउ? नो नो नो, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है प्रांजल, तब आपको स्पष्ट करना होगा ना कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ पापा। ऐसा नहीं कि अभी आप आए हो तो मैं आपके सामने आके बैठ गई और बुक्स खोल ली। नहीं नहीं, मैं तो 3 घंटे से 4 घंटे से बैठ के पढ़ रही हूँ। इज दैट ओके एवरीवन, दिस टेंस? Yes. ठीक है, तो इसलिए इसका फर्क है राजेश्वरी एंड एवरीवन, क्योंकि हिंदी में हम जनरली यही बोलते हैं क्या कर रहे हो प्रांजल? मैं पढ़ रही हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। तो हम हिंदी में ये नहीं बोलते मैं 2 घंटे से लगातार पढ़ती आ रही हूँ, ये नहीं बोलते हम, जबकि बोलना तो यही चाहिए, पर नहीं बोलते क्योंकि समझ जाते हैं 2 घंटे लगाया तो मतलब 2 घंटे से पढ़ रही हूँ मैं। तो लेकिन अंग्रेजी में इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, नो वन आई एम स्टडिंग, नो आई हैव बिन स्टडिंग। ठीक है, समझ आ गया सभी को इसका सेंस? तो Yes, sir. तो अभी देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, कैसे बनता है। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से लगातार पढ़ता आ रहा हूं। जो आसान शब्दों में क्या कहेंगे? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। ठीक है, और इसका एक और रूप है शी हैज बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। साक्षी बताइए इसका क्या मतलब है? शी हैज बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। आपके घर में आपके मित्र आए साक्षी, उन्होंने कहा अरे ये गाने की आवाज कहां से आ रही है? तो आपने आपकी कजिन के लिए कहा शी हैज बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मतलब है साक्षी? वो वह सुबह से गा रही है, सुबह से गाती आ रही है। वेरी गुड, वो सुबह से गा रही है, थकती नहीं है, सुबह से रियाज ही रियाज कर रही है, वो सुबह से गाती आ रही है। शी हैज बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो इसमें कैसे बनाते हैं इसको? बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का। या इसकी संरचना जो है हैव और हैज काम में लेना है, बिन लगाना है, बिन। इसको बीन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? बिन। बोली साथ में सब अनम्यूट करके, बिन बिन। right? Been. So I have been, she has been, they have been, और ing, right? कृष्ण मन्यु आपसे सवाल पूछूंगा, कैसे हम करेंगे? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। I have been studying for 2 hours. हाँ, I have been studying for 2 hours. I have been studying for 2 hours या 2 hours, 2 hours. ठीक है, been, थोड़ा सा इसका उच्चारण, been, I have been studying for 2 hours.
ठीक है, क्या मतलब है इसका सेंस समझ में आता है आपको? मैं लगातार 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूं, ये है इसका सेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, देखते हैं हम इसका कुछ और एग्जांपल्स। ओके, वो लगातार 1 हफ्ते से काम करते आ रहे हैं। राजेश्वरी, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? वो लगातार 1 हफ्ते से काम करते आ रहे हैं। They have been working for a week. एब्सोल्युटली, इसका यही मतलब है कि वो लगातार 1 हफ्ते से काम कर रहे हैं। अब हिंदी में क्या कहते हैं हम काम कर रहे हैं और काम करते आ रहे हैं ना, उसमें ज्यादा फर्क नहीं करते। पर आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये अंग्रेजी में एक्चुअली कहना चाह रहा है कि वो 1 हफ्ते से लगातार काम करते जा रहे हैं, करते आ रहे हैं। इज दैट ओके एवरीवन? अरबाज, Yes, sir. राइट? Yes. चलिए अब नेगेटिव कर लेते हैं। प्रांजल, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ती आ रही हूँ, मैं तो 5 घंटे से पढ़ती आ रही हूँ। किसी ने कहा 2 घंटे से पढ़ रही हो ना? नहीं नहीं, 5 घंटे से लगातार पढ़ती आ रही हूँ मैं। तो आपको इतना सही बोलना है प्रांजल, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रही हूँ। I have not been studying for 2 hours. हाँ, I have not been studying for 2 hours. Rather के बजाय, rather RATH, rather के बजाय rather I have been studying for 5 hours now. I have been studying for 5 hours now. ठीक है, rather होता है के बजाय, बल्कि या बल्कि भी बोल सकते हैं हिंदी में, बल्कि मैं तो 5 घंटे से पढ़ती आ रही हूँ, राइट? ओके, वह सुबह से नहीं गा रही है। सरिता, यू देयर? सरिता बताइए, वह सुबह से नहीं गा रही है। She has not been singing since morning. Since, इसको पढ़िए सरिता, since। Since. हाँ बिल्कुल, she has not been singing since morning, वो सुबह से नहीं गाती आ रही है ना, वो तो अभी आधे घंटे पहले ही बैठी है। ओके, और इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। अरबाज, वे 1 हफ्ते से काम नहीं कर रहे हैं। They have not been working for a week. हाँ, they have not been working for a week, यानी कि पहले वो काम कर रहे थे, अभी 1 हफ्ता खाली रहा। किसने आके पूछा कि आपका जो मकान बन रहा था या जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो क्या हुआ, काम वाम नहीं हो रहा? नो नो, दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर अ वीक, दे हैव नॉट बीन वर्किंग। वो 1 हफ्ते से लगातार काम नहीं करते आ रहे हैं, जो भी कारण रहा, छुट्टी पे चले गए, कोई त्योहार था, व्हाटएवर द रीजन वाज, राइट? ओके, और इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा प्रश्न। हैव आई बीन ing, हैज शी बीन ing, हैव दे बीन ing। क्या वो 1 घंटे से पढ़ता आ रहा है? क्या वो सुबह से गा रही है? Has she been singing since morning? Have you been studying for 5 hours? क्या आप लगातार 5 घंटे से पढ़ते आ रहे हो? कमाल है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, has या have लगाएंगे, व्यक्ति का नाम डालेंगे, been डालेंगे और ing डालेंगे। बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, परफेक्ट। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आपको मैं खूब सारा गृह कार्य दे देता हूं। चलिए, कितने लोग हैं हम? जितने लोग हैं उतने फटाफट सेंटेंस। पहला, ओके, आई लुक एट द लिस्ट। अरबाज बताइए, मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं। अरबाज बताइए, अनम्यूट कीजिए। I think there's some technical glitch at his end. Yeah, Pranjal बताओ बेटा। I had been studying from since 3 hours. I के बाद क्या बोला आपने? I had been studying. I have, है ना? Have, I have been, ठीक है, I have been studying। अब आप since लगाओगे कि for लगाओगे, बताओ? Sir, that is the Question, सर, हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है सर कि मैं since लगाऊंगी for लगाऊं। since लगाते हैं जब हम समय को बता, since morning, आप स्टार्टिंग पॉइंट बताओगे ना तो आप since लगाओगे, और जब आप उसकी पूरी ड्यूरेशन दोगे ना कितने घंटे के लिए प्रांशल, तो आप for लगाओगे। I have been studying for 3 hours, 3 घंटे का जो पूरा समय है ना, उस 3 घंटे के समय, उस पूरी ड्यूरेशन के दौरान से मैं पढ़ती आ रही हूँ। लेकिन आप जब since लगाओगे ना, since morning, मॉर्निंग में आपने मॉर्निंग बोल दिया, मॉर्निंग से लेके अभी तक, अभी क्या हो रहा है, अभी शाम हो गई है, कोई बात नहीं। since कब लगाते हैं? जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम देते हैं। समझ में आ रहा है आपको प्रांजल? पॉइंट ऑफ टाइम since, और पूरा ड्यूरेशन देंगे तो for। ठीक है, क्लियर है आपको? सो अगर आपको कहना कि मैं सुबह से पढ़ती आ रही हूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं 5 घंटों से पढ़ती आ रही हूं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, तब सिंस 5 आवर्स नहीं बोलोगे आप, ठीक है?
क्योंकि 5 घंटे कोई समय नहीं है जो चालू बताता है, वो तो पूरी ड्यूरेशन बताता है इसलिए। ठीक है प्रांजल? Okay, sir. Yes, sir. ऑलराइट, राजेश्वरी वह सुबह से खाना बना रही है। She has been preparing food since morning. Very good. She has been cooking since morning. She has been preparing food since morning. Very good. Next, साक्षी वह 2 घंटे से फुटबॉल, वे तो प्लूरल हो गया, वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। Yes, sir. They have been football for 2 hours. प्लेइंग तो गायब ही कर दिया आपने, जो मुख्य क्रिया थी। Yes, sir. बताइए। They have been playing football for 2 hours. Voila, exactly. So they have been playing football for 2 hours. For क्योंकि वो समय सीमा जो है वो 2 घंटे की है, लेकिन सुबह से खेलते तो सिंस लगाते। ठीक है, चलिए। हम इस शहर में 10 साल से रह रहे हैं। कृष्णमन्यु नहीं, पहले रुबीना से पूछने वाला। रुबीना, आपने बहुत सिटीज चेंज किए ना, इसलिए मेरे को लगा कि आप पांडिचेरी में भी, तो आप बताइए। हम इस शहर में 10 साल से रहते आ रहे हैं, बताइए। I have been living in this city for 10 years. Okay, for 10 years. All right, for 10 years. Yeah, that's correct. Yeah, और since लगाते तो आप वो वर्ष देते, since 2000 और Since that- हाँ, since के साथ आप वो वर्ष दे देते हैं ना, since 2000 और जो भी ईयर होता। Okay, quickly, कृष्णमन्यु वह 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है। सर अपने हाँ बताओ बेटा, वह 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है। सर अपने वर्क मतलब ही हाँ, he he 5 years he has been he has been 5 years he has been के बाद बेटा वो क्रिया तो लगाओ ing के साथ। he has been working in this company for the past 5 years, right? पिछले 5 सालों से, for the past 5 years। चलिए, और अंत में अरबाज, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? अरबाज, इज इट ओके? Yes, sir. हाँ, बिकॉज आई कुडंट हेयर यू, आप शायद कुछ कह रहे थे, पता नहीं आपको मेरी आवाज आई थी शुरुआत में। आई वाज आस्किंग द फर्स्ट सेंटेंस एंड देन आई कुडंट गेट योर वॉइस, सो वी मूव्ड अहेड। सो एनीवे, चलिए कोई बात नहीं, देयर वाज परहैप्स अ टेक्निकल ग्लिच। द सिक्स्थ वन फॉर यू अरबाज, मैं 6 महीने से स्पेनिश सीख रहा हूँ। I am learning Spanish from this month. ओके, फ्रॉम आएगा या सिंस आएगा या फॉर आएगा, देखते हैं। रुबिना, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रुबिना, मैं ये सेंटेंस को बोलना चाह रही थी। हाँ बोल दीजिए, कोई बात नहीं। मैं 6 महीने से स्पेनिश सीख रही हूँ, बता दीजिए आप भी। I have been learning Spanish. सर कितने महीने से सीख रहे हो? 6 महीने से। सीख रही हूँ for last 6 months. Okay, I have been learning Spanish for the past 6 months. For the past 6 months. Yes. Right. Okay. अब हम इसको देख लेते हैं। Is there anyone to whom I didn't ask the question? I think everyone responded. सरिता, आपने भी जवाब दिया। सरिता, एक बार आप ये वाला दे दीजिए। बच्चे दोपहर से टीवी देख रहे हैं। There have been children watching TV since हाँ, since afternoon. Right. So they. the children have been watching TV since afternoon. Very good, very good. आपने वो शब्द ऊपर नीचे कर दिया, पर आपने उसको दुरुस्त कर लिया। That's correct. Okay, so these are the answers. I have been studying for 3 hours. She has been cooking since morning. They have been playing football for 2 hours. We have been living in this city for 10 years. He has been working at this company for 5 years. I have been learning Spanish for 6 months. And the kids have been watching TV since noon. Yeah, I think that was better. Not since afternoon, since noon. That's more precise. ठीक है, clear है सभी को यहाँ तक के sentences? Yes, sir. Okay, you want to say something? अरबाज, कुछ कहना है आपको? सर इसमें 4 और 3 समझ नहीं आ रही है। देखिए,
फॉर कब लगता है, सिंस कब लगता है? फॉर लगता है जब वो समय सीमा का पूरा टाइम है आपके पास, 10 साल, 6 महीने, ये क्या होता है? ये समय का काल है, दैट्स अ पीरियड। ठीक है, जब कभी एक पीरियड आएगा, 6 महीने हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो आप फॉर लगाएंगे। और जब कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट आएगा ना, तब आप लगाओगे सिंस। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग तो कोई एक समय का काल नहीं है ना, तो सिर्फ शुरुआती क्षण है। या बच्चे नून से, दोपहर 12 बजे से, नून से देखते आ रहे हैं, तो सिंस नून। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर है आपको? अरबाज, जब कभी भी क्लियर। स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा चालू होने का, तो सिंस, और जब कभी भी उसकी पूरी ड्यूरेशन आ जाएगी, तो फॉर। ठीक। ठीक है, चलिए। So with that, we have come to the end of our today's session, and I hope you did understand a lot of things in this session. On the weekend, please try all these tenses. जो सारे tenses हमने देखे उनको अच्छे से देखिएगा। ये मैं आपको भेज दूंगा PDF। इसके अंदर बचे हुए सारे tenses के जो questions उनको ट्राई कीजिएगा। वीकेंड पे ना केवल अपना ध्यान रखेंगे, एंजॉय करेंगे, बल्कि अंग्रेजी भी पढ़ेंगे। And then we'll catch up on Monday, and then we'll move ahead with some new topics. All right. So with that, I wish you all a great evening. Take care of yourself. Have a great weekend as well. Thank you. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you. Thank you, everyone.